اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ مرد کی نماز کا طریقہ جدا ہے، عورت کی نماز کا طریقہ جدا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مرد نماز اور طریقے پر پڑھے، عورت نماز اور طریقے پر پڑھے۔ جب مرد نے نماز پڑھنی ہے اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے، اور جب عورت نماز پڑھے اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائے، اور جب مرد ہاتھ باندھے تو ناف کے نیچے باندھے، عورت ہاتھ باندھے تو سینے پر باندھے۔ جب مرد رکوع میں جائے تو یوں برابر جھک جائے، اور جب عورت رکوع میں جائے تو اتنا سا جھکے کہ جس میں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے۔ مرد سجدے میں جائے تو اس کے بازو کھلے ہونے چاہیے، ٹانگیں اس کے پیٹ سے ران جدا ہونے چاہیے، چھوٹا بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ اور جب عورت نماز پڑھے تو دائیں ران کو بائیں ران پہ رکھے، عورت کو چاہیے کہ پیٹ اور رانوں کو ملا لے اور زمین کے ساتھ مل کے نماز پڑھے۔ مرد اور عورت کے طریقے میں کچھ فرق ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں جی فرق نہیں ہے۔ ہم نے کہا پوچھا فرق کیوں نہیں ہے؟ کیا جی ہمارے پاس دلیل موجود ہے؟ میں نے کہا دلیل بیان کرو۔ کہتا ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ دلیل سمجھنا، سلو کما رأیتمونی، میں بدجانتی سے کام نہیں دوں گا، تیری پوری دلیل بیان کر کے پھر پورا جواب دوں گا۔ میری دلیل پر اشکال ہو چٹ لکھ دے، میں صفائی کر کے اٹھوں گا۔ میرے جانے کے بعد میں کہنا نہیں میں چٹ لکھنی سی پر مہمان سمجھ کے میں حیا کیتا، میں کہا جب میرے سامنے حیا کیتا تو میرے تو بعد بے حیا نہ بن۔ گل ٹھیک ہے غلط ہے؟ توجہ رکھنا، میں دلیل شروع کرنے لگا ہوں۔ کہا جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ حضور نے خطاب مردوں عورتوں دونوں کو کیا ہے، لہذا مرد بھی نماز ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، عورت کی نماز ایسے پڑھے جیسے حضور نے پڑھی ہے۔ جب نبی نے فرق نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو فرق کرنے والے؟ میں نے کہا بیٹا آدھی حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا، اور پوری حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا۔ ذرا اسی روایت کو جو امام بخاری نے پڑھی ہے آپ شروع سے شروع کر دیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم جو نوجوان تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کچھ دن حضور کی خدمت میں رہے۔ اللہ کے نبی رحیم و مہربان تھے، حضور نے محسوس کیا ہمیں گھر کا تقاضا ہے، حضور نے محسوس کیا یہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اب تم گھر چلے جاؤ۔ اس سے پتہ چلا ان کے ساتھ عورتیں نہیں تھی، توجہ، پتہ چلا عورتیں نہیں تھی، صرف مرد آئے تھے، عورتیں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی نمازیں اور دین سکھاؤ، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا ایک بات تو سمجھ آ گئی، عورتیں موجود نہیں تھی، صرف مرد موجود تھے، حکم مردوں کو دیا ہے، حکم عورتوں کو نہیں دیا۔ اور اگر میں مان لوں یہ حکم اللہ کے نبی نے عورتوں مردوں سب کو دیا ہے، حدیث یہاں پر ختم تو نہیں ہے، حدیث تو آگے بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو تم نے واپس جانا ہے نا، واپس جاؤ۔ جب تم سفر کرو وَلِيَؤُمَّكُمْ أَحَدٌ وَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک آدمی اذان دے، تم میں سے ایک۔ تو اگر یہ حکم سب کے لیے ہے تو میں نے عورت اذان دے سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ توجہ، حضور نے فرمایا تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یوں کرنا فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے۔ آگے پھر دوسرا جملہ فرمایا وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا ہو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے۔ میں نے کہا عورت کرا سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا کہ یہ ہدایات عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایات صرف مردوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث کس کے لیے؟ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اگر عورتوں کے لیے ہے پھر امامت بھی کہہ دے، جب تو نماز کے لیے جماعت اذان بھی کہہ دے، اور جب یہ نہیں ہے تو پھر مان لے یہ دونوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور میں نے کہا اگر یوں تم دلیلیں پیش کرو گے نا کہ دیکھو یہ حکم سب کو ہے تو پھر یہ تمہیں بات بڑی مہنگی پڑے گی۔ مجھے کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا تم گھر جاؤ گے تو گھر کی عورت سر کے پگڑی باندھ لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے تم گریبان کو کھول لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے گی، تم گھر کی عورت تو دیکھو گے وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے گی۔ ہم پوچھیں گے تم نے یوں کیوں کیا ہے؟ وہ کہے گی قرآن کہتا ہے لقد کان لکم، قرآن کہتا ہے لقد کان
नलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, नबी तुम सब के लिए नमूना है। तुम्हारे नमूना है तो मेरे लिए नहीं है? नबी तुम सब के लिए नमूना है। तो हजूर की सुन्नत अगर तुमने जिंदा करनी है तो मैं क्यों ना करूं? हजूर ने पगड़ी बांधी, मैं भी बांधूंगी। हजूर ने गिरबान खोला, मैं भी खोलूंगी। हजूर ने सलवार ऊपर की, मैं भी करूंगी। हजूर ने घोड़े पर सवारी की, मैं भी करूंगी। मैंने कहा क्या जवाब देगा? तवज्जो, कहता ना ये मतलब नहीं है। मैंने कहा फिर उसका भी वो मतलब नहीं है। अगर इसका मतलब नहीं तो उसका भी, ये भी तो खिताब सबको है ना। तो जिस तरह इस आयत का मतलब ये है कि पैगंबर नमूना तुम सब के लिए, क्या मतलब? जो तालीमात मर्दों के लिए है वह मर्दों के लिए है, और जो औरतों के लिए है वह औरतों के लिए है। जो नमाज औरतों के लिए, औरत उसके मुताबिक, तो जो नमाज मर्दों के लिए, मर्द उसके मुताबिक। अब जरा दलीलें समझना कि मर्द औरत की नमाज में फर्क कैसे है। मैं कहता हूँ दलील नकली भी है और दलील अकली भी है। दलील नकली का माना जो नकल होकर आती है, जिसे कुरान और हदीस कहते हैं, इसे दलील नकली कहते हैं। और दलील अकली का माना क्या है? जिसे कियास और दिमाग कहते हैं। मर्द औरत की नमाज में फर्क है, दलील नकली भी है, दलील अकली भी है। दलील नंबर 1, नबी पाक सल्लल्लाहु गुजर रहे थे, अन्नन नबी तमरु अला मरअतैन तुसल्ली अलैहि, हजूर गुजरे तो औरतें नमाज पढ़ रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा सजदतुमा फजुम्मा बाद लहमी इलल अर्ज़, जब तुम नमाज पढ़ो अपने जिस्म को जमीन के साथ मिला लिया करो। फ़इन्नल मरअत फी ज़ालिका लैसत कर्रजुल, इसलिए कि नमाज के मसले में औरत मर्द की तरह नहीं है, औरत मर्द की तरह नहीं है। मैंने कहा नबी ने अलग अलग कर दिया है, फिर तो वो कौन होता है? अलग न माने। हदीस मुबारक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत नमाज पढ़ती है, तवज्जो रखना, जब औरत नमाज पढ़े और अत्तहियात में बैठे, अपने दाएं रान को बाएं पर रख ले, और जब औरत नमाज पढ़े और अपने पेट को जमीन के साथ मिला ले, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर अल्लाह खुद फरमाते अपने फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मैंने इस औरत को माफ कर दिया है। ये मेरे पैगंबर ने ऐलान फरमाया है कि जब औरत नमाज यूं पढ़े, खुदा इसकी माफी का ऐलान करता है। नंबर 1 तीसरी में हदीस पेश कर लगो, अल्लाह के नबी ने हज़रत वाइल रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सहाबी से फरमाया या वाइल इज़ा सल्लैता, वाइल जब तू नमाज पढ़े, फजल यदैका हिज़ा उज़ुनैका, तो नमाज पढ़ते वक्त अपने कानों को अपने हाथों को कानों के बराबर उठाना। बल मरअतु तजल यदैका हिज़ा असरियहा, और जब औरत हाथ उठाए अपने सीने के बराबर उठाए तो नबी ने सजदे में फर्क फरमा दिया है, नबी ने तशहुद में फर्क फरमा दिया है, तो नबी ने इसी तरह हाथ उठाने में फर्क फरमा दिया है। और तब आइम्मा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद और चारों आइम्मा के इस बात पे इजमा है कि मर्द औरत की नमाज में फर्क है। कहाँ फर्क है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कास्तरिमा यकूनु लहा, जिस पे औरत का सतर ज्यादा है औरत ख्याल उसका करे। जब नमाज पढ़ने लगो, आदमी हाथ यहाँ तक उठाए या यहाँ तक उठाए, ज्यादा सतर इसमें है, औरत हाथ नीचे रखे, औरत हाथ फैला दे या समेट ले, ज्यादा सतर हाथ समेटने में है, औरत ये पूरी झुक जाए या थोड़ी सी झुक के घुटनों को हाथ लगाए तो सतर इसमें ज्यादा है। हत्ता के बुखारी में रिवायत मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फर्क किया है, अगर मर्द आगे नमाज में है औरत पीछे खड़ी है, इसका माना यह नहीं है औरतों को जमात में आना चाहिए। हदीस साफ मौजूद है, उम्मे हुमाद साइदिया कहती है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है मैं आपके साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाने लगे कद अलिम तो अन्ना के तो हिब्बी नस्सलात वही, हाँ उम्मे हुमैद मैं जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है तेरा दिल करता है तो नमाज मेरे साथ पढ़े, लेकिन मैं मोहम्मद कहता हूँ तेरा नमाज कमरे में पढ़ना बरामदे से बेहतर है, बरामदे में पढ़ना घर के सेन से बेहतर है, मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना अपने घर के सेन से बेहतर है। हत्ता के तेरा मेरी मस्जिद, तेरा मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने से बेहतर है। तो नबी ने फतवा दिया औरत का कमरे में नमाज पढ़ना मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने से बेहतर। ये फतवा किसका है? इमाम आज़म अबू हनीफा का? बोलो ना। इमाम मालिक का? किसका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप कहोगे फिर इसका मतलब क्या है जो आप दलील देने लगी है? इसका मतलब ये है बेटा तरावी पढ़ाता है, उसका जी चाहता है मैं घर में तरावी पढ़ा लूं, मेरा अब्बू भी सुन ले, मेरी अम्मी भी सुन ले, आगे अब्बू और भाई खड़े हैं, पीछे अम्मी और बहन खड़ी है, तरावी पढ़ रहे हैं और घर में तरावी पढ़ सकते हैं। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है,
अलल किफाया है। मस्जिद में सुन्नत मुअक्कदा, चंद लोग पढ़ लें, सुन्नत पूरी होगी। अगर कोई कुरान सुनने के लिए अपने घर में हाफिज के पीछे पढ़ ले, ये कोई गुनाह की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ बुखारी में रिवायत क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे इमाम मौजूद है, अगर पीछे औरत मौजूद हो, इमाम भूल जाए तो मर्दों को क्या कहना चाहिए, औरत को क्या कहना चाहिए? नबी पाक फरमाते हैं, इन्नमत तस्बीह लिर्रिजाले व तस्फीक लिन्निसाए। इमाम भूजे तो मुख्तरी के सुबहान अल्लाह, और अगर इमाम बोले औरत अपनी जुबान में से सुबहान अल्लाह ना कहे, हाथ पे हाथ मारे, हाथ पे हाथ मारे, औरत की आवाज सतर है, तो नबी ने लुकमे में भी फर्क फरमा दिया। ये पिछला सुबहान अल्लाह कह दे, अगर मर्द हो अगर औरत हो तो जुबान से सुबहान अल्लाह भी ना कहे बल्कि हाथ पे हाथ मार दे। तो फर्क तो किया है ना, लेकिन जो देख नकली दलील भी मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फर्क किया है, तवज्जो रखना, और अकली दलील भी मौजूद है। जब अकली दलील सुनना, अकली दलील क्या है? इबादत की दो किस्में हैं, नंबर एक इबादत मालिया, नंबर दो इबादत बदनिया। औरत और मर्द की इबादत मालिया में कोई फर्क नहीं है। क्यों? इबादत मालिया वो जिसका ताल्लुक माल से है, और इबादत बदनिया वो जिसका ताल्लुक बदन से है। औरत और मर्द के माल में तो कोई फर्क नहीं है। अगर उशर है तो मर्द की जमीन में भी उतना, औरत की जमीन में भी उतना, जमीन तो दोनों की एक जैसी है। अगर इनके पास बैंक में माल मौजूद है, इतनी ज़कात मर्द पर है उतनी औरत पर है, क्योंकि दोनों के माल में तो कोई फर्क नहीं है। मर्द और औरत की इबादत मालिया में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इबादत बदनिया में फर्क है। मैं मिसाल देता हूँ, मर्द हज पे जाना चाहता है, उसके लिए साथ किसी महरम का होना कोई शर्त नहीं है, लेकिन औरत हज पे जाना चाहती है तो साथ महरम का होना शर्त है। ये महरम या किसी महरम या बाप और बेटा, ये महरम जो है या इसका खामिद, ये इसके माल की हिफाजत के लिए नहीं है, इसके बदन की हिफाजत के लिए है। तवज्जो रखना, या इनने एहराम बांधना है तो मर्द एहराम बांधेगा वो चादरें जो अनसिली है, औरत एहराम बांधेगी जो सिला हुआ कपड़ा है। मर्द एहराम बांधे तो तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक ऊंची आवाज से, और औरत तलबिया आहिस्ता पड़ेगी। इनका ताल्लुक जो कि बदन से है। जब यहाँ से चले हैं और तवाफ करने लगे हैं तो पहले तवाफ में मर्द ने रमल करना है, थोड़ा सा करके रमल करना है। औरत यूं नहीं कर सकती, ताल्लुक बदन से है। तवज्जो रखना, मर्द जब पहले 3 चक्कर लगाए अपने दाएं कंधे को नंगा कर ले, औरत नंगा नहीं कर सकती, ताल्लुक बदन से है। अगर ये वहां से चले जाए, सफा और मरवा में जाने लगे हैं तो सफा से चले हैं, आगे सबज रंग की बत्ती आई है, वहां से दौड़ना है सबज रंग की बत्ती तक, फिर मरवा तक चलना है। ये साई जो करनी है सफा और मरवा की, मीलन अक्सर है, 2 सबज बत्तियों के दरमियान दौड़ना, ये मर्द के जिम्मे है, औरत के जिम्मे नहीं है। और खानेवाल के दोस्तों, एक नुक्ते पे तवज्जो रखना, ये दौड़ने की सुन्नत क्यों है? ये सुन्नत हजरत इब्राहिम की नहीं है, सुन्नत अम्मी हाजरा की है। सुन्नत किसकी है? अम्मी हाजरा दौड़ी थी ना। अम्मी हाजरा देखी, इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे के पास है और पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर दूध छातियों में कहां से आएगा? अम्मी हाजरा सफा पहाड़ी पे चढ़ी है, शायद को आधा काफिला नजर आए, कोई नजर नहीं आया। फिर सफा पहाड़ी से ये नीचे आई, इस्माइल जहां से नजर आ रहे थे आहिस्ता चली, और जब नशेब में चलेगी इस्माइल ऊपर है, नजर नहीं आते। अम्मी हाजरा दौड़ी है और जब वहां तक पहुंची बेटा नजर आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, फिर वापस आई है जहां तक बेटा नजर आता, आहिस्ता चली, और जब नशेब में चलेगी बेटा नजर नहीं आता तो फिर दौड़ी है। ये दौड़ने की सुन्नत हजरत इब्राहिम की नहीं है, अम्मी हाजरा की है। तो जब सुन्नत अम्मी हाजरा की है तो जिंदा बेटी को करना चाहिए थी ना, लेकिन हुक्म ये है अगर ये सुन्नत अम्मी हाजरा की है लेकिन जिंदा बेटी नहीं, बेटा करेगा, क्योंकि ताल्लुक बदन से है। जब अम्मी हाजरा दौड़ी तो अकेली थी, अब औरत अकेली नहीं होगी, हर या उम्रा होगा, हजारों की लाखों की तादाद में है। अगर मर्द दौड़ता है फर्क नहीं पड़ता, अगर औरत दौड़ती है तो बदन छलकता है, इससे औरत के सतर के खुलने का खतरा है। तो सुन्नत औरत की थी, खुदा ने जिंदा मर्दों से कराई है। ताल्लुक बदन से जो था, ताल्लुक बदन से जो था, फरमाया इबादत बदल गई है, उम्र से फारिग हो गए। अगर मर्द क्या करे, चाहे तो टेंड करा ले, ये अफजल है हलक कराए, और चाहे तो कसर करा ले, एक बोरा बालों को काट दे, लेकिन औरत कसर करा सकती है, हलक नहीं करा सकती, क्योंकि ताल्लुक किससे है?
ताल्लुक बदन से है। हदीस मुबारक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 फरिश्ते रोजाना तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान मन ज़य्यना रिजाला बिल्लुहा वन्निसाअ बिद्दवाए। वो खुदा पाक है जिसने मर्द को दाढ़ी से ज़ीनत दी है और औरत को बालों से ज़ीनत दी है। जिस तरह औरतों के लिए बाल मुंडवाना हराम है, मर्दों के लिए भी दाढ़ी मुंडवाना हराम है। मेरी बात अच्छी तरह समझना, मैं समझा क्या रहा था कि जिस इबादत का ताल्लुक बदन से है, मर्द की और है, औरत की अलग है। अगर इबादत मालिया है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो रोजे को देख ले, मर्द पूरा महीना रखता है, औरत पूरा महीना नहीं रखती, महीने में कुछ दिन छोड़ लेती है। ताल्लुक बदन से जो है, तो मैंने तुझे मिसालों से समझाया। इबादत की दो किस्में, इबादत बदनिया और इबादत मालिया। इबादत मालिया का ताल्लुक माल से है, इबादत बदनिया का ताल्लुक बदन से है। तवज्जो रखना, क्योंकि औरत और मर्द के माल में फर्क नहीं है, इबादत मालिया में भी फर्क नहीं है, और बदन में चूंकि फर्क है तो बदन के तकाजे औरत के और है, मर्द के और है। इन इबादत बदनिया में फर्क है, हर इबादत बदनिया इनमें फर्क है। अगर तुम देखे रमजान के रोजे को, इबादत बदनिया इनमें फर्क है। कुरान की तिलावत को देखे, ये इबादत बदनिया है। मर्द ऊंची आवाज से तिलावत कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। अगर तू नात पढ़ना चाहे, इबादत बदनिया है, मर्द ऊंची आवाज से नात पढ़ सकता है, औरत नहीं पढ़ सकती। अगर अजान को देखे, इबादत बदनिया है, मर्द दे सकता है, औरत नहीं दे सकती। अगर तकबीर को देखे, इबादत बदनिया है, मर्द कहता है, औरत नहीं कह सकती। इनमें फर्क जो है मैं बताने ये लगा था, इबादत बदनिया में फर्क है और मालिया में कोई फर्क नहीं। मैं इसके बाद के तो मुझे तू बता, ये जो नमाज पढ़ी है, अगर इबादत मालिया है तो फर्क नहीं होना चाहिए, अगर इबादत बदनिया है तो अकल भी कहती है फर्क होना चाहिए। अकल भी कहती है फर्क होना चाहिए। मैं कहता हूं नकल भी कहती है, अकल भी कहती है। जो फर्क नहीं मानता उसके पास हदीस नकल भी नहीं, अकल भी नहीं, दोनों से फारिग है। मैं एक जलसे में था, मुझे एक साथ चिढ़ दी, दुआ करो जी, गैर मुकल्लिद सर पे पगड़ी और टोपी। मैंने कहा मैं दुआ नहीं मांगता। मुझे कहते हैं क्यों? मैंने कहा मांगता हूं लेकिन और दुआ। कहते वो क्या? मैंने कहा दुआ करो खुदा इनको अकल दे। तवज्जो रखना, खुदा इनको अकल दे। मुझे कहते जी वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि अकल होगी तो हिफाजत के लिए टोपी भी पहनेगा, अकल ही नहीं हिफाजत के लिए टोपी की जरूरत भी नहीं है। तुम कहते हो टोपी नहीं है, मैं कहता हूं अकल नहीं है। मेरी गल समझ आई? अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अकल और नकल दोनों कहते हैं कि मर्द औरत की नमाज में, मर्द की नमाज अलग है, औरत की नमाज अलग है। चलिए मैं एक मसला उस पेश करता हूँ। बुनियाद तो आपके पास है ना ज़हन में? मैंने बुनियाद क्या बताई थी? रब्बना आतिना, बोलो ना, फिर दुनिया व फिल आखिरत। अल्लाह तो दुनिया भी बेहतर दे, अल्लाह आखिरत भी। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत। अगर दुनिया बेहतर चाहिए तो राबता इंजीनियर से रखना, अगर आखिरत बेहतर चाहिए तो राबता, इधर इसको बंद करो बस, इसका राबता फकीह से रखना। क्यों? इसलिए कि हदीस का जो माना फकीह समझता है वो दूसरा नहीं समझता। जरा फकीह से समझना। मैं एक हदीस सुनाने